जोरदार तालियां रेमा के लिए। Rema, my bro, welcome to my show. Thank you How so are much you? for having me. I'm good. I'm good. Good? I'm happy. Yeah. बुला तो लिया इंग्लिश बंदा, बात क्या करूं मैं? How's your trip going on, bro? Amazing. It's hot, just like Nigeria. Oh wow! You know you have huge fan following in India. Yes. Yeah, so many people are making reels on your song. हाँ, आगे. So, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये अकेले ऐसे नाइजीरियन स्टार हैं जिनका सॉन्ग जो है यूएस की बिलबोर्ड टॉप 10 में शामिल था। जोरदार ताली होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, काम डाउन ऑफिशियल मेना चार्ट में नंबर 1 पे रहा है, उसके लिए भी ताली होनी चाहिए। और इसके अब तक 400 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज इंडिया से आए हैं। देखिए रेमा ब्रो, you are just 23 and you have achieved so much. My God. Yes. You know, and now I want to congratulate you on your new achievement to be at my show. Congratulations. It's a great honor. I'm grateful. Thank you, bro. I'm grateful. मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे ना एक फ्री स्टाइल वीडियो डाला था, जिसको देखने के बाद इनको रिकॉर्डिंग डील मिली। Yeah. So the nowadays, freestyle. if you want something, you go and buy it, or you put it on Instagram. I need this, and people say, "Be calm down." I feel like whatever I need right now just comes to me. Wow, At this point in you're time. lucky. Actually, you have girlfriends? No. I don't have a girlfriend. No. You're such a huge star, man. What are you doing? You're wasting your time. I'm not wasting my time. I feel like in this point in my life, it's quite confusing because there's so many girls. But no, this is the right time to make girlfriends. After 40, cells become, अच्छा, Calm Down जो गाना है, इतना सुपर डुपर हिट है. The whole world is making reels on it. Did you check some Indian fans? If I Which texted one them? you find most funniest reel on your song? Funniest reel. You know the guy from France that takes people's phones and be like, "Baby, Oh. calm down." And, yeah. Yeah, that guy. Rema, I saw your video. It mostly shot in the house only, you know, on the sofa, on the couch. Was it because of some budget issue, or you were too shy to dance in the public? It was because that was actually how it happened in real life. So Wow. we're just trying to recreate it. Very in nice, the actually. video. Yeah. So the model who were dancing on the song, you hired professional models, or all they were your neighbors? Some people were models, some people were just my friends in the video. Just friends? Yeah. Not more than friends? Models and friends. Yeah. Okay. अभी हाल ही में ना रेमा ने मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में अपना इंडिया टूर कंप्लीट किया है. Rema, I saw the clips on Instagram. You danced with Nora Fateh, you know? Yeah. Yeah. So whenever I get a chance to dance with Nora, you know, I got threatening calls from my wife. Oh, wow. Yeah. So when you were dancing with Nora, did you get any threatening call from your girlfriend or whatever? No, because I don't have a girlfriend, so there were no threats. But it was really amazing seeing her on stage and, you know, putting me on Afrobeats made by Guru. So it was really amazing, teaching me the dance and everything. It was beautiful, and I appreciate that. And I'm very grateful. I love you guys so much. Thank you. Rema, have you tried any Indian dish, any Indian food? Yeah. I think so far my favorite is tikka masala. Oh, Tikka masala. wow. You know, in tikka masala, we put so much spices. Chilies. Yeah, You know- so next day if we use tissue paper, it catches fire. No, I mean, it's true. Rema, I heard you were wearing Manish Malhotra's outfit on your show. Yeah, and this is made by my. This is also Manish Malhotra? Yes. So what is Manish Malhotra wearing right now? If you are wearing... Sorry for my silly jokes. Kapil, I wanted to ask a question, Rema. What do you like most about India? I would say the people. The people are loving. The people are welcoming. That kind. Yeah. There's so much love in the air. They're very nice, very, very helpful, very welcoming. Everywhere I went to, they embraced me like their own. So I feel so much at home. And yeah, that's it for me. Yes. Yeah. Rema, in Nigeria, you know, when wedding happens, your jija, aphupas, I mean, your uncles, do they dance like snake, you know? In India, you know, the snake dance is
Very famous. Very famous. Oh, yeah? And Very famous. compulsory. Compulsory. You know, without this dance, one can't become groom. I will call somebody. Okay. Sapna, Vakil Saab, they will teach you Nagin dance. So, bro, don't feel shy. Okay. She's an assembled lady. Not natural. Yeah. From inside, I am boy. So don't get excited. Wow. Very nice. Very cool. Yeah. Nice. Amazing. But what you did on the floor, I don't know. No, that one's too tough. You want to try? Oh, no. I'm good. Rema, you know, you are so famous in India. In future, you can also act in Bollywood movies. I hope Yes. so. I hope so. So I can teach you some Hindi dialogues as well. You want to learn? Okay, sure. Okay. Pushpa, झुकेगा नहीं साला. Pushpa. Okay. Pushpa, for this dialogue, you need to grow your beard actually, but it's okay. Pushpa, Pushpa. झुकेगा नहीं साला. Juke. Ga. झुकेगा Nahi. Jukega. नहीं Nahi. साला. Sala. Okay, there's one more famous dialogue, you know, झुकेगा the नहीं global superstar, whose name is Shah Rukh Khan. Okay. His dialogues are quite popular. So the dialogue is, do like this. बड़े बड़े शहरों में. Okay. बड़े बड़े शहरों में. बड़े शहरों में. छोटी छोटी बातें छोटी बातें होती रहती हैं. होती रहती हैं. Very nice. I did well. Yeah. Big city, small talk keep happening. That's what it is. That was quite easy. I feel like Yeah. if I stay in India for like a year, You'll know the language and then you can really work in Bollywood. Yes. Bollywood, watch out. I'm coming soon. Watch out. Okay, you know, we love you so much. So we are actually eagerly waiting for your next trip to India. Okay. So I will teach you a song. Whenever you finish your show, just sing these two lines. It means, चलते चलते मेरे गीत याद रखना. इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में समझाओ. Walking, remember my song. I say, yeah. It means actually, always remember me in your dreams, in your prayers. Always Like this remember kind my of- songs. yeah. My songs in your dreams, in your memories. May my songs always remain with you in your memories. That's what it means. इतना टाइम लगा आपको समझाने में. मुझे लगा था आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी मैं है. ऑफिशियल ट्रांसलेटर नहीं हूँ. आपसे अच्छी तो मैं बोल रहा हूँ. Allah, come on. Okay, the song is चलते चलते sing चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना very nice कभी अलविदा ना कहना. Wow. right कभी अलविदा ना कहना. अलविदा means bye bye. Okay. अलविदा ना कहना. कभी अलविदा ना कहना. Rema bro, it's an honor to have you on my show. Thank you so much, my brother, and all the best for all your future projects. Thank you. And we are eagerly waiting for your next trip to India. I can't Lots wait. of love, bro. I can't wait to be back. जोरदार तालियां हो जाए रेमा के लिए. Thank you. शुक्रिया. वकील साहब, हाँ मैं चलता हूँ. get out. फिर मुलाकात होगी. धन्यवाद. अर्चना जी, अब यहाँ पे एक फैमिली की 3 पीढ़ियां आने वाली हैं. ये तीनों ही स्टार्स हैं, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, स्टाइलिश हैं. ये चाहे मैगजीन के कवर पे आए, फिल्म के पर्दे पे आए या फिर किसी मंच पे आए, अपने अंदाज से, अपने तेवर से हमेशा चर्चा में रहे हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर कबीर बेदी, गॉर्जियस पूजा बेदी एंड वेरी ब्यूटीफुल अलाया. बाजी, वेलकम. जोरदार तालियां. आओ जी. वेलकम अलाया. तालियां जोरदार होनी चाहिए. कबीर सर, पूजा, अलाया, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है.
Thank you. बहुत प्यारे लग रहे हैं आप तीनों। Thank you so much. और जिस तरीके से इन्होंने एंट्री ली है ना, दिल खुश हो जाता है देख के। लगता है रॉयल फैमिली फैशन शो पे जा रही है, रैंप वॉक करने। कितने प्यारे लग रहे हैं सर। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। कबीर सर की आप पर्सनालिटी देखिए, क्या हाइट, क्या फिटनेस, क्या लुक और क्या दमदार आवाज है। लड़कियां जो क्वालिटीज अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में देखती हैं ना, वो सारी इनमें मौजूद हैं एक्चुअली, इसीलिए इनके हिस्से में आई भी ज्यादा है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे शो पे देख के। पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं। कपिल, तुमने मुझे बहुत खुश किया क्योंकि तुमने मेरी पूरी फैमिली को बुलाया है एक साथ कपिल शर्मा के शो पे। कोई छोटी बात नहीं, अरे बहुत सर, बड़ी बात। हमारा सौभाग्य है आप आए। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश। शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर एक बात पूछनी थी, अर्चना जी का भी बहुत सारी लेडीज का सवाल था, जेंट्स का एक्चुअली ज्यादा है। वो बोलते हैं कि आप पे इतनी लड़कियां मरती हैं तो ज्यादा आपकी इंग्लिश से इंप्रेस होती हैं कि आपकी फिजिक पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर उसी हिसाब से काम करूँ कि मैं अपनी भाषा पे काम करूँ या कोई काम करने की जरूरत नहीं कपिल, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ आज ज्यादा लड़कियां आप पे मरती है कि मुझ पे। पूरी फैमिली इतनी ब्यूटीफुल है ना। आप पूजा जी को देख लीजिए, क्या मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। आपको देख के ना मुझे सिजलर की याद आ जाती है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, तो सिजलर जाता है तो एक बार आदमी घूम कर जरूर देखता है कि किसके प्लेट में जा रहा है। कपिल, मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी लोग मुझे कहते हैं योर डॉटर इज सो हॉट, मुझे देख के कहते हैं योर सो हॉट, कुछ कहते हैं योर फादर सो हॉट। आई फील लाइक पूरी ग्लोबल वार्मिंग का कारण हमारा फैमिली है। इसमें कोई शक नहीं। मामा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमने पहली बार देखा था जो जीता वही सिकंदर में। आमिर खान साहब ने इन्हीं को देख के पहली बार बोला था ओ तेरी। उसके पूजा का एक शो आता था जस्ट पूजा, जिसमें ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। कभी आपने सोचा था बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते लेते एक ऐसे शो में जाएंगी जहां पे एक नॉन सेलिब्रिटी मोर पॉपुलर देन सेलिब्रिटीज आपका इंटरव्यू लेगा? ओहो, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ कीजिए। अच्छा आप देखिए, कबीर सर की डॉटर पूजा, पूजा की डॉटर अलाया, खूबसूरती में इजाफा जो है लगातार होता जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ अच्छा हो फल भी अच्छे लगते हैं। पूजा, आपके घर में आपके पापा इतने हैंडसम हैं। जब आप कॉलेज में थी, किसी लड़के की हिम्मत होती थी आपको प्रपोज करने की कि कबीर सर की फोटो देख के खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेते कि नहीं यार उनके पापा देखो और हम कहाँ हैं? लड़के डरते थे। क्यों? They used to all look and say, is he a man or is he a mountain? You know, they used to look at him like this huge big man. और जब मैं इंडस्ट्री में आई और सब लोग कहते थे कास्टिंग काउच है, you know, बच के रहना etc. I think इंडस्ट्री इतनी घबरा जाती थी पापा को देख के, उनकी कद, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी देख के, किसी की हिम्मत नहीं हुई, you know, to even approach me in that manner. So I think आपको इस बात का दुख है? बहुत दुख होगा। I think I've done well for myself. मेरे मंगेतर बैठे हैं वहाँ पर आज, मानिक कॉन्ट्रैक्टर। Hello, welcome. And it's been a wonderful journey. It's been a wonderful life. अच्छा, इनकी इस सारी फैमिली जो है, इनमें एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। तो आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी आप अपने पापा को बताती थी कि खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड में बहुत बिजी थे? मतलब आप शेयरिंग इज केयरिंग, कपिल, शेयरिंग इज केयरिंग। वो यू नो अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर करते थे, मैं तो अपनी जिंदगी हमेशा पापा के साथ भी शेयर करती थी। सो इट्स अ वेरी ओपन फैमिली एंड एंड पापा के वैल्यू सिस्टम्स जो है, पापा और मम्मी के दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स है, वो ये है कि अगर कोई हमारी जिंदगी में आए हैं और एक हिस्सा बन चुके हैं ऑफ आवर फैमिली और आवर लाइफ इन सम मैनर, we don't disrespect them when they leave. We keep the friendships, we keep that equation. तो जैसे कि अलाया के पापा जो है अभी तक मेरे वेरी गुड फ्रेंड है एंड वी मीट ऑल द टाइम, वी हैव डिनर्स। हिज करंट वाइफ लाइला जो है वो भी हमारे करीब है। तो फॉर अस आवर फैमिली गेट्स बिगर, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। कपिल जी, कभी कभी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं और ये सफर पूरा नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि उसके बाद अगर पार्टिंग जरूरी है और हमेशा पेनफुल होता है, उसके बाद क्या? अगर उसके बाद एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखा जा सके तो सबसे बेहतर एक्चुअली। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं अपनी सारी एक्सरसाइज के साथ फ्रेंड रहा हूं सेपरेशन के बाद भी। वेरी नाइस। अलाया, अब आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं, आप अपनी मम्मी से एडवाइस लेती हैं फिल्में करने से पहले?
नहीं, मैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स या करियर मैं सिर्फ अपने टीम से एडवाइस लेती हूँ एक्चुअली. अच्छा. डिस्कशंस इसलिए होते वो हैं घर. सफल है. नहीं, what are you saying? I mean it. नहीं. I always laugh. Sorry to interrupt, darling. I always laugh and say कि talent skipped a generation. You know, पापा बहुत talented है, internationally famous है. अलाया का काम तो सब देख चुके हैं. She's a phenomenal actress. अलग-अलग films, अलग-अलग characters को निभाया है. She's amazing. Somehow it skipped one generation, came down. So she had to take tips from this generation. पर आप जब फिल्में करती थी आप कबीर सर से पूछती थी? नहीं, पूजा उस वक्त मेरे साथ अमेरिका में रह रही थी. अच्छा. हाई स्कूल कर रही थी और इसका मन बना कि मुझे बॉम्बे वापस जाना है. अच्छा जी. उस वक्त एक फिल्म मेकर थे जगमोहन मुंद्रा, जिन्होंने इसे एक फिल्म ऑफर की. अच्छा जी. तो मैंने कहा पूजा ये फिल्म मत करो, अगर एंट्री करनी है इंडस्ट्री में प्रिपेयर करके पूरी तैयारी करके एक अच्छा बैनर लेके एंट्री करो. इसने कहा नहीं मैं करूंगी. जिद्दी हमेशा थी. But there's a reason for उसकी that. वजह थी कि ये इंडिया वापस जाना चाहती थी इस फिल्म के बहाने. अच्छा. हाँ, और वही किया उसने. जगमोहन की फिल्म एक्सेप्ट की, यहाँ आई, विश कन्या बनाई और हालांकि ये फिल्म नहीं चली फिर भी उसको जो जीता वही सिकंदर मिली जिसमें बहुत सफल रही. एक्चुअली बहुत बहुत प्यारी फिल्म थी. पूजा जैसे आप जब आई ना आप जो जीता वही सिकंदर में तो इतना आपका क्रेज बढ़ गया था लड़कों में और कबीर सर का क्रेज तो हमेशा से रहा है ये लड़कियों के बीच में. कभी आपके स्कूल में ये गए हों पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए तो बगल वाले स्कूल की टीचर भी आ जाती होंगी देखने कि कबीर साहब आए हैं. इसलिए उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल पे भेजा था. अच्छा. Far away up in the mountains. तो स्कूल आते ही नहीं थे? Of course आते थे and you know all the mothers would obviously say you know your father so handsome. Forget that. इटली जाती थी. पापा बहुत बहुत मशहूर है इटली में और वहाँ पे मैं जाती थी तो सारे इटालियन लेडीज जो है आके बोलते थे we love your father, I want to have his child. ऐसे नहीं बोलते बच्चों को. देखिए मेरा करियर वाकई बहुत अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है. बॉलीवुड, हॉलीवुड, यूरोप. और यूरोप में एक सीरीज थी सैंडोकान जिसमें मैंने हीरो का रोल किया था जी. 6 घंटे की सीरीज थी और इस सीरीज ने मुझे यूरोप भर में मुझे स्टार बना दिया. वाह. और स्टोरी जो बहुत मशहूर हुई कि स्पेन में वहाँ बहुत ही मतलब बीटल मेनिया चल रहा था. मेरे आसपास हजारों लोग आ रहे थे और एक औरत ने चिल्लाया आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी. और ये कहावत पूरे पेपर्स में आ गई स्पेन में एंड आई वॉन्ट टू हैव योर बेबी एक स्लोगन बन गया. आपका क्या रिएक्शन था ये लाइन सुनने के बाद? मेरा रिएक्शन था ये लाइन ने ध्यान तो खींचा ही होगा आपके, हैं? मैं इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं ले सकता हूँ. कबीर सर ऐसा होता ना कि कोई बड़ा हैंडसम लड़का है 18-20 साल का तो मोहल्ले वाले आसपास वाले बड़ा बोलते ना कि तुझे तो हीरो बनना चाहिए. तो आपको बोलते थे आपके आसपास वाले कि आपके मन में शुरू से था कि मुझे एक्टर बनना है? नहीं मुझे कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी. मैं जब बम्बई आया मैं फिल्म मेकर बनने के लिए आया था. अच्छा जी. क्यों क्या था मेरे पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर थे और कल्चरली बहुत अमीर थे, इंटेलेक्चुअली बहुत अमीर थे लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास. अच्छा जी. लेकिन बहुत सैक्रिफाइस करके उन्होंने मुझे मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली में एडमिशन मिली. अच्छा. लेकिन एडमिशन के पैसे नहीं थे मेरे पास. तो पैसे कमाने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया. ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम शुरू किया और फिर वहाँ कई किस्से हुए. मैंने बीटल्स का इंटरव्यू किया, वो सब किया. सर वो बड़ा मजेदार किस्सा था. बीटल्स ग्रुप जब इंडिया आया वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे इंडिया में. अपना शेड्यूल खत्म करके निकलना था उनको और इन्होंने जाके उनके मैनेजर को बोला कि देखिए मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हूँ, गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है आपकी इंटरव्यू मेरे साथ. सर इस उम्र में इतनी आपने जो साजिश रची उस समय वो बड़ा कमाल का किस्सा था. सर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं. मैं बीटल्स का सबसे बड़ा फैन था. तो जब मैंने सुना कि बीटल्स दिल्ली आए हैं मैंने ठान ली कि मैं जाके उनका इंटरव्यू करूंगा, किसी तरह का मिल कराऊंगा. दिल्ली में ठहरे हुए थे, लॉबी में सारे जर्नलिस्ट ढूंढ रहे थे बीटल्स को. मुझे पता था कि मुझे मैनेजर को कैच करना है. 2 घंटे बाद मुझे मैनेजर दिख गया और मैंने उसको कहा कि देखिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हूँ और सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि रात 10 बजे बीटल्स का इंटरव्यू होगा. उनका नॉनसेंस, द बॉयज विल नॉट गिव एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी.
मैं कहा नो सर, आई एम अ बिग बीटल्स फैन, अगर ये नहीं करेंगे सरकार के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पहले उनके साथ कुछ हुआ भी था ना, सब फिलीपींस में जो शो करके आए थे। वो क्या था, फिलीपींस में उन्होंने एक शो किया था, उसके बाद फिलीपींस के जो रूलर थे उन्होंने बीटल्स को कहा आप हमारे घर आइए और हमारे बच्चों के लिए गाने गाइए। बीटल्स ने रिफ्यूज कर दिया, तो बीटल्स के पीछे पड़ गए और बीटल्स को जल्दी फिलीपींस से निकलना पड़ा और इसलिए दिल्ली पहुंचे थे। तो मुझे पता था, क्योंकि आई एम अ बीटल्स फैन, कि फिलीपींस में इनकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं गवर्नमेंट कहता रहा क्योंकि मैं जानता था कि यही पॉइंट है उनकी वीकनेस। और इवेंचुअली जब मैं ब्रायन एप्स्टाइन को मिलने गया, वो पता नहीं उसकी हालत, तबीयत खराब थी, क्या था, उसने कहा आई कांट डू दिस, कम विद मी। दरवाजा खटखटाया, पॉल मैकार्टनी दरवाजा खोला Good God. और उसने कहा बॉयज डू मी अ फेवर, गिव दिस चैप एन इंटरव्यू। And I was in with the Beatles. Wow. In the hotel room. All for the Beatles. The biggest musicians on the planet. Symbols of the 1960s. That was another Udaipur moment for me. वाओ। I felt I had died and gone to heaven. वहाँ तो क्या हुआ, ये इंटरव्यू ले लिया, ब्रॉडकास्ट भी हुआ। एक हफ्ते बाद मैं जब गया ऑल इंडिया रेडियो के पास कि कॉपी देना इंटरव्यू की, उन्होंने मिली नहीं। इंक्वायरी लॉन्च की, पता चला उन्होंने किसी और का इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया था। Oh my God. और ये मतलब मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैंने कहा मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। और 700 रुपए जो मेरे पास थे, ट्रेन पकड़ी और बम्बई आया टू बिकम अ फिल्म मेकर। तो एक्टिंग का मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा जी। ये नशे में मैं किसको ले आई? हाँ बाबा, तू जा, तू जा सबको चाय पिला। ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरे? हेलो, हाय, प्रणाम कबीर जी। अरे जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। नमस्ते पूजा जी। नमस्ते। अलाया, यो। ये यो वाला क्या होता है? मैं जेनरेशन के हिसाब से सबको ग्रीट कर रही हूँ। अर्चना जी, आपको तो दंडवत प्रणाम। तेरे को मालूम है कप्पू, हाँ। ये हड़प सभ्यता से है। हड़प सभ्यता नहीं, हड़प्पा। नहीं, ये किसी की सभ्यता हड़प के बैठी है ना, इसीलिए बोल रही थी। मैं सच्ची में ऐसी फिट फैमिली किधर देखी इसने, एक बार जोरदार ताली हो जाए। Thank you. क्या फिटनेस है आप लोग की। अभी देखो पूजा जी और अलाया, आप लोग माँ बेटी है ना? Yes. हाँ, लेकिन फ्रेंड्स लगते हैं। हाँ तो Is she your good friend? यू नो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है अगर कोई कहे कि वी आर फ्रेंड्स, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मम्मी ने मुझसे कहा था कि आई एम योर मदर, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बीइंग योर मदर इज मच बेटर देन बीइंग योर वेरी फ्रेंड। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। मम्मी के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं करने का। मैंने कहा आई कैन बी अ फ्रेंडली मदर बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं आपकी माँ हूँ और माँ का रोल एंड पोजीशन ये। अलग होता है। Correct. एंड मुझे काफी कुछ वैसे। कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, जो शायद फ्रेंड आपको नहीं कहेगा, लेकिन ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ समय में शायद यूल हेट मी, आप शायद सोचोगे कि यू नो आई एम द वर्स्ट पर्सन, जब आप टीनेजर्स में होगे खास करके, एंड फिर आप वापस मुझे प्यार करने लगोगे, बिकॉज आपके जो फेजेस है, आप वो फेजेस पे चलते जाओगे। और मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पास कोई रूल्स नहीं थे। हाँ। मेरी मैं मम्मी जाऊं क्या? नहीं, नहीं। नहीं बोलिए, आप अच्छी बात बोल रहे हैं आप। जब मैं छोटी थी वो टाइम पे मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, किसके साथ में जाओ, ये टाइम पे ही वापस आना है, ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो। और मेरे सारे फ्रेंड्स के मदर ये सब उनको बहुत स्ट्रिक्टली बताते थे। वो हालांकि लंबे स्कर्ट पहन के गाड़ी में बैठते थे, फिर निकाल के छोटी स्कर्ट नीचे होती थी। लेकिन नहीं, आई हैव अ डेडलाइन, मेरा कर्फ्यू थे। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि यू नो आपको भी ये सब कहना चाहिए मुझे कि क्या टाइम में आ सकती हूँ या आना चाहिए या किनके साथ में जा सकती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा यू वांट मी टू टेल यू आपका कर्फ्यू है, आपका ये है, आपको। मैंने कहा हाँ, क्योंकि माँ का ये रोल होता है। आप सही बोल रहे हैं। इनका नहीं, मेरी गलती है, मैंने पूछ लिया सवाल। आज हम गाड़ी में बैठे थे, हम दोनों साथ में यहाँ आ रहे थे। 40 मिनट के लिए मम्मी बात करते गई। एक पॉइंट पे हम यहाँ फाइनली पहुंच गए। सर पे बोला मम्मी
आपको रियलाइज हुआ है 40 मिनट से आपने एक बार भी आप साइलेंस में नहीं बैठे हो. दिस इज नहीं अच्छी बात बोले. आपका ना इंग्लिश छोड़ के बाकी सब समझ गई थी मैं. हाँ, बीच बीच में आप बोलते हैं ना, वो नहीं समझी थी. लेकिन ना मम्मी के साथ फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, मैंने देखेला है. हाँ, मेरी मम्मी है ना कमला जी, एक दिन मेरे को बोली, सपना तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तू ना मेरे से खुल के बात किया कर, मेरे से खुल के डिस्कस किया कर, तेरे जो मन में है तू बोल. मैं उसको बोली, देख कमला, हम लोग अभी जिस बेड पे बैठे हैं ना, उसके नीचे मेरा छावा मुकेश छुपा हुआ है. माय गॉड, मेरी माँ ने मुकेश को इतना मारा, मार मार के उसके घर तक पहुंच गई वो. तो तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि जब वो उसके घर गई ना, जो अलमारी में बंद था उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया. हमारा ऐसे रहता है. नहीं, मैं आपको कुछ नहीं पूछी अभी. अलाया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. हाँ, बहुत हैंडसम नाना रखे ले आपने. एक हमारे नाना है, हमारी नानी तक उनको नाना कहती है. नानी क्यों नाना बोलती है? वो दिखने में इतने अच्छे नहीं है ना, तो जब भी नानी के पास जाते हैं, नानी कहती नाना नाना नाना. लेकिन बहुत अच्छे आदमी है वो. उनका एक प्रॉब्लम है. क्या? हाँ, उनका एक ही कान है. छोटी छोटी बात पे वो बुरा मान जाती है. क्यों? क्योंकि बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं सकते ना, इसीलिए. अरे मैं भी कहा अपनी फैमिली लेके बैठ गई. ओ सॉरी, फैमिली लेके तो आप बैठे हैं, सॉरी. बहुत अच्छी लग रही है पूजा जी. बहुत आपका ये ड्रेसिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा. पूजा जी, मेरे को जाते जाते ये ड्रेस देंगे क्या मेरे को? शर्म नहीं आती तो गेस्ट से कपड़े मांगती है? सॉरी. अच्छा लगता है ऐसे? अपना 5 रुपया वापस रखो, अगली बार से खुद मांगना आप. ये लो. खुद मांगा करो ना, फिर ये मेरे को डांटता है. अच्छा, ओके. मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है. नहीं. मैं भी सेलिब्रिटी हूँ. सेलिब्रिटी क्या होता है? हाँ, सेलिब्रिटी क्या होता है? देखो, सेलिब्रिटी वो होता है जिसको दुनिया पसंद करती है. हाँ. मेरे को मेरा जीजा बहुत पसंद करता है, इसलिए एक चीज मैं देखे लिए कप्पू. क्या? ये फिल्म लाइन में कैसा रहता है, जो आदमी जैसा होता है ना उसको वैसे ही काम मिलता है. जैसे अभी यंग है, क्यूट है, ब्यूटीफुल है, तो इन्होंने जवानी जाने मन की. हाँ. आपको पता है अर्चना जी ने कौन सी पिक्चर की? कौन सी? कंडपोली राजा. ये कौन सी फिल्म है? आपको खुद नहीं पता? आपको पता नहीं आपने कंडपोली राजा की है? आज रात को बैठ के देखना घर पे आप. उसमें ये क्या बनी है? कोंडापल्ली के राजा? मेरे ख्याल से कोंडापल्ली का रोल किया है. फिर एक और पिक्चर की इन्होंने, खंजर. तो आदमी जैसा रहता है, मैंने देखा उसको वैसे ही रोल मिलता है. पूजा जी, आपका गोवा में बहुत बड़ा कैफे है ना? हाँ, मेरा गोवा में बहुत बड़ा चाचा है. क्या? हाँ, वो क्या करते हैं गोवा में? वो कसिनो है ना, वो पानी के बीच में रहते हैं ना. हाँ. शिप, उसके सामने वो भीख मांगते हैं वो. कैसीनो के बाहर कौन भीख मांगता है? जो अंदर से हार के आता है. अच्छा. क्या हुआ? क्या? प्लेन का आवाज है आपको? नहीं. प्लेन का आवाज? प्लेन जा रहा है ऊपर से. मैं उन लोग को बाय बोल के आती हूँ. हाँ. क्या भाग गया?